Good morning, students. Today we are going to talk about spinal nerves. सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, हमने डिवाइड किया इन्हें दो टाइप की नर्व्स में. वन आर क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होंगी, एंड द अदर वन आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, मीन्स दे आर गोइंग टू अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. सो जितनी भी नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, दे आर गोइंग टू we are going to call them spinal nerves. If we say what is the number of spinal nerves that are present, so we are having 31 pair of spinal nerves. So 31 pair of spinal nerves are arising from spinal cord. हमने स्पाइनल कोड का मीन्स हमने वी टॉक्ड अबाउट वर्टिब्रल कॉलम. जब हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट द सेक्शंस इन विच आर वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड. हमने 5 सेक्शंस की बात की थी. सर्वाइकल रीजन इज देयर, दैट इज फॉलोड बाय थोरेसिक रीजन, देन लोअर देन थोरेसिक रीजन लंबर रीजन इज प्रेजेंट, सैक्रम इज देयर एंड कोकिक्स रीजन इज प्रेजेंट. हर एक रीजन से डिफरेंट नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं और कंबाइन करते हैं. अगर हम उनका टोटल करते हैं, सो द टोटल इज 31 pairs. Means if this is the spinal cord, then nerves are arising from this side as well as same nerves are arising from this side. That's why we are saying pair of spinal nerves are present. So let's see which region is giving rise to how many different number of spinal nerves. In cervical region is giving to rise to 8 spinal nerves. Then comes our thoracic region. Thoracic region is giving rise to 12 spinal nerves, 5 from the lumbar region, 5 from the sacrum and 1 from the coccyx region. So these are the number of spinal nerves that are arising from different regions of spinal cord. So if we write down the formula for spinal nerves, it will be C8. C stands for cervical. So C8, 8 numbers are arising from cervical region. It's TH12 for thoracic region, L5 for lumbar region, S5 for sacral region, and for coccyx region it is 1. So this is the formula for the spinal nerves that are arising from different regions. Now see, when we talked about cranial nerves, so cranial nerves में हमने क्या देखा था कि there are 12 pair of nerves. उनमें से कुछ nerves as a sensory nerve behave करती हैं, means they are only behaving as sensory nerve, while some nerves are behaving as only motor nerves and some nerves are mixed. They are having both type of nerve fibers, sensory nerve fibers as well as motor nerve fibers. लेकिन spinal cord से जितनी भी nerves arise होती हैं, all the nerves are mixed nerves. All nerves are mixed nerves. Mixed nerves simply means, what do we understand by mixed nerves? That these nerves are having both type of nerve fibers. They are having sensory nerve fibers and motor nerve fibers. तो दोनों ही तरह के नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन नर्व्स में. उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं. सो ऑल द 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, दे आर ऑल मिक्स्ड नर्व्स. दे आर हैविंग बोथ टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स. सो with the help of a diagram, let's see how these nerves are arising from the spinal cord. लास्ट टाइम हमने स्पाइनल कोड का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा था. सो दैट ट्रांसवर्स सेक्शन विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ नर्व्स आर अराइजिंग.
सो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने ड्रॉ किया था, दैट ट्रांसवर्स सेक्शन वाज हैविंग 2 फिशर्स. ये हमारा एंटीरियर फिशर था, दैट वाज डीप. दिस इज द पोस्टीरियर फिशर और यू कैन से डोर्सल साइड. सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर स्पाइनल कोड. ये हमारे स्पाइनल कोड का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है. दिस इज द डोर्सल साइड और वी कैन से पोस्टीरियर. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द वेंट्रल साइड और वी कैन से एंटीरियर साइड. अब इसमें हमने देखा था कि जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे है. ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड, अंदर की तरफ ग्रे मैटर प्रेजेंट है, दैट इज गिविंग अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर. दिस इज हाउ द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट. और जो वाइट मैटर है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है. सो दिस इनर वन इज द ग्रे मैटर एंड दिस आउटर पोर्शन इज ऑफ वाइट मैटर. अब इस ग्रे मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देयर इज अ एच shape structure that is forming. There are 2 horns that are created. Horns present on the dorsal side, they are known as dorsal horn, and present on the ventral side, they are known as ventral horn. So we are having dorsal horn. This is the dorsal horn and this is the ventral horn. Now why these horns are important? Always remember, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स अराइज होती हैं वो इन होर्न से अराइज होती हैं. सो दे आर फॉर्मिंग दिस साइड डोर्सल रूट एंड दिस साइड दे आर फॉर्मिंग द वेंट्रल रूट. सो फ्रॉम दिस पोर्शन द नर्व फाइबर्स आर गोइंग टू अराइज लाइक दिस वे. दिस इज द नर्व फाइबर दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द डोर्सल साइड. ये डोर्सल साइड से अराइज हो रहा है. से आई एम शोइंग इट विद अ डिफरेंट कलर. दिस इज द नर्व फाइबर दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल और यू कैन से एंटीरियर साइड. दिस पोर्शन द नर्व फाइबर्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम दिस रीजन, इसको हम बोलते हैं डोर्सल रूट. ये वाली साइड क्या है हमारी? दिस इज डोर्सल रूट. When I was talking about spinal cord, तब मैंने आपको बताया था डोर्सल साइड पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं. दीज आर सेंसरी. सेंसरी नर्व फाइबर्स का मतलब है ये सेंस ऑर्गन से मैसेज कहाँ लेके आ रहे हैं? स्पाइनल कोड के पास लेके आ रहे हैं. दैट मीन्स इनका जो डायरेक्शन है मैसेज कन्वे करने का, दैट इज this side. Means they are taking the message from the sense organs and bringing it to the spinal cord. So जब message आता है that is known as afferent fiber. So I can write afferent also. So this is a dorsal root or you can say sensory or afferent. Same अगर हम ventral side की बात करते हैं, this is the ventral root. वेंट्रल रूट पे जितने भी फाइबर्स प्रेजेंट है वो नेचर में कैसे हैं? मोटर नर्व फाइबर्स हैं. दैट मीन्स दे आर टेकिंग द मैसेज अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड. वो स्पाइनल कोड से अवे लेके जाते हैं मैसेज को. दैट मीन्स मैसेज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो इट विल बी वेंट्रल रूट और यू कैन से मोटर और वी कैन यूज द वर्ड इफरेंट. सो एफरेंट वो हैं जो मैसेज को लेके आते हैं और इफरेंट वो हैं जो मैसेज को लेके जाते हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं डोर्सल रूट पे और वेंट्रल रूट पे. अगर हम और डिफरेंस की बात करते हैं, देन दिस डोर्सल रूट इज हैविंग अ गैंग्लियन ओवर हेयर, दैट इज नोन एज डोर्सल रूट गैंग्लियन. What do we understand by the word ganglion? हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं ganglion word. Ganglion word का सिंपल सा मतलब है जहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स एग्रीगेट होते हैं.
दे आर क्लम्पिंग टुगेदर एंड दैट इज नोन एज गैंग्लियन. सो सिर्फ डोर्सल साइड पे गैंग्लियन प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं है. नाउ these nerve fibers are moving out like this way. Now from where they are coming out? We talked about intervertebral foramen. हमारी स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रन करती है. देयर इज अ वर्टिब्रल कैनाल या जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जो हमारी वर्टिब्रे के बीच में पोर्शन ओपन फोरामेन प्रेजेंट है उसके थ्रू बनती है. तो वहाँ से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ये नर्व्स फाइबर्स बाहर निकलते हैं. एंड दीज नर्व फाइबर्स व्हेन दे आर मूविंग आउट, जब ये बाहर निकलते हैं, दे आर शेयरिंग अ कॉमन कवरिंग. इनके ऊपर एक कॉमन कवरिंग प्रेजेंट है. A common covering is present over them and this is how they are coming out. So these two nerve fibers, they are coming out with the help of intervertebral foramen. वहाँ से बाहर निकलते हैं, एक कॉमन कवरिंग इनके इसके ऊपर प्रेजेंट है. एंड व्हेन वी सी दिस स्ट्रक्चर, जब हम इस पार्ट को देखते हैं, सो हाउ इट इज गोइंग टू अपीयर. ये एक नर्व की तरह दिखाई देता है, दिस कॉमन कवरिंग, एंड दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अपीयरिंग लाइक अ नर्व. और इस नर्व में दो फाइबर्स प्रेजेंट हैं. द अपर वन इज सेंसरी, ये हमारा सेंसरी फाइबर है. और जो नीचे वाला ग्रीन पोर्शन पे मैंने शो किया है, दिस इज द motor nerve fiber. So this is appearing like a nerve that is having two type of fibers, sensory fiber and motor fiber. इसलिए मैंने बोला these are mixed nerves. This is a mixed nerve because it is having both the type of fibers, sensory fibers as well as motor fibers. So intervertebral foramen से ये बाहर मूव करते हैं, और जब ये बाहर मूव करते हैं, they are going to show branching. They are going to branch into 3 parts. ये ब्रांच हो जाते हैं आगे में और इनसे 3 ब्रांचेस निकलती हैं. These branches are going to move differently. जो यहाँ इस ऊपर डोर्सल साइड की तरफ ब्रांच निकलती है, that is known as posterior branch. This is posterior branch. और ये पोस्टीरियर ब्रांच हमारी बॉडी की पोस्टीरियर मसल्स, जो पोस्टीरियर साइड में मसल्स प्रेजेंट है और स्किन है, वहाँ तक मूव करती है. जो वेंट्रल साइड में या एंटीरियर साइड की तरफ जो ब्रांच अराइज हो रही है, दैट इज द एंटीरियर ब्रांच. जो एंटीरियर ब्रांच है वो एंटीरियर साइड पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं, लिम्ब्स प्रेजेंट हैं, उनमें इनोवेट करती है. और जो मिडल की जो ब्रांच बच जाती है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. आफ्टर कंप्लीटिंग स्पाइनल नर्व्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो दीज आर गोइंग टू गिव राइज टू पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप के फाइबर्स से बना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स. सो यहाँ पर जो तीसरी ब्रांच अराइज होती है, ये क्या है, हमारे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, जो हमारी बॉडी की विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इनर्वेट करते हैं. सो दिस इज हाउ नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है. We have already talked about it. So this is the transverse section of spinal cord. ग्रे मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट है, वाइट मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट है. यहाँ पर डोर्सल हॉर्न्स प्रेजेंट हैं, that are going to give rise to dorsal root ganglions और dorsal root nerves. ये हमारे वेंट्रल हॉर्न्स हैं, जहाँ से वेंट्रल रूट अराइज होती है या मोटर न्यूरॉन्स अराइज होते हैं. Both the neurons are
coming out of the spinal cord with the help of intervertebral foramen, और जब ये बाहर की तरफ मूव करते हैं दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ वन सिंगल नर्व. सो एक ही सिंगल नर्व में सेंसरी नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं और मोटर नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं. व्हेन दे आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दे आर गोइंग टू फॉर्म 3 ब्रांचेस. जब ये बाहर मूव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से तो ये 3 ब्रांचेस क्रिएट करते हैं. वन इज गोइंग टू मूव ऑन द पोस्टीरियर साइड, जिसको हम पोस्टीरियर ब्रांच बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की पोस्टीरियर मसल्स और स्किन में इनर्वेट करती है. वन इज गोइंग टू फॉर्म द एंटीरियर ब्रांच, जो एंटीरियर मसल्स और हमारे लिम्स में इनर्वेट करती है. और जो तीसरी सेंटर में ब्रांच बच जाती है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर. सो दिस इज हाउ द नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड. और सारी ही नर्व्स कैसी होंगी नेचर में, मिक्स्ड नर्व्स होंगी. नाउ ये स्पाइनल नर्व्स, इनमें से कुछ स्पाइनल नर्व्स दे एग्रीगेट टुगेदर और वो प्लक्सेस बनाती हैं. मींस बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ कंबाइन होते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्लक्सेस. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लक्सेस और नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स that are formed by the spinal cord. So some of the spinal nerves they are combining together to form the प्लक्सेस. और प्लक्सेस क्या है? प्लक्सेस इज सिंपली नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स. सो इनमें से कुछ नर्व्स प्लक्सेस बनाती हैं. वन इज सर्वाइकल प्लक्स, दिस सर्वाइकल प्लक्सेस इट इज प्रेजेंट इनटू, ये जो सर्वाइकल प्लक्स है ये हमारे बॉडी के कौन से रीजन में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द डायफ्राम एंड नेक रीजन. सो इन दो रीजन्स में कुछ नर्व्स, इफ वी सी द नंबर इट इज मोस्टली C1 to C4, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व टू फोर्थ सर्वाइकल नर्व. दे आर गोइंग टू फॉर्म अ नेटवर्क इन द डायफ्राम एंड neck region. The second plux is brachial plux. This brachial plux is going to form in the arm region. It is going to form in chest and arm region. This is the second one. The third is the lumbar plux. We are going to see this lumbar plux in our legs. ये legs में present होती हैं. And last two, that is our sacral plux as well as coccygeal plux. ये दोनों ही हमारे pelvic region में present होती हैं. These are present in the pelvic region. This is also present in the pelvic region. So some of the spinal nerves they are going to form a network of nerve fibers in different regions of our body. That network of nerve fiber is known as plexus, and depending upon in which region they are present and or which nerves are forming these plexus, we have named them differently, and they are innervating in the different regions of our body. So this is all about the spinal nerves. This spinal nerves they are the part of our peripheral nervous system. तो हमने दो टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ लिए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें we talked about brain and spinal cord. Then comes our peripheral nervous system in which we talked about cranial nerves and spinal nerves. अब जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है that is autonomic nervous system. So we are going to talk about autonomic nervous system.
this autonomic nervous system, why the name autonomic is given? Because it is independent of the central nervous system. ये central nervous system से independently function करता है, but we cannot say that it is not having any type of connection with the central nervous system. It is connected with the central nervous system. We will see it is attached with the spinal cord. When we will go in detail about the type of nervous autonomic nervous system, तब हम देखेंगे ये spinal cord के साथ attached होता है, that is a part of central nervous system, but ये function independently करता है, that's why we are calling it as autonomic nervous system. Now which part of our body is controlled by autonomic nervous system? This autonomic nervous system is going to control the internal organs of our body. That means it is going to take care of all the involuntary actions. Involuntary parts of our body, basically with the visceral organs. जो पार्ट्स हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, से आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. नाउ वी आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल और व्हेन द ग्लैंड्स आर गोइंग टू सिक्रीट और हाउ मच the glands are going to secrete the digestive juice, that is not on our will. So such type of functions are being controlled by the autonomic nervous system that are completely involuntary, वो humans के या organisms के control में नहीं होते हैं. Now this autonomic nervous system, it is divided into two parts. हम autonomic nervous system को दो type के nervous system में divide करते हैं because they are going to function in different conditions. ये डिफरेंट कंडीशंस में फंक्शन करते हैं एंड वी विल सी दैट दे आर गोइंग टू फंक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, मीन्स दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. वन इज नोन एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज नोन एज पैरासिम्पैथेटिक nervous system. So this autonomic nervous system is divided into two parts, sympathetic nervous system and पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दोनों ही सिस्टम हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इनर्वेटेड हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट कंडीशंस में काम करते हैं. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम फंक्शन करता है व्हेन देयर इज अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, मीन्स एमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इंटरनल ऑर्गन्स को. और जो रेस्ट एंड रिलैक्स सिचुएशन होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मीन्स नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है. Today we are going to talk about sympathetic nervous system in detail, and in our next class we will talk about parasympathetic nervous system, and after completing both these two we will compare the functioning of sympathetic and parasympathetic nervous system. So we are going to talk about just sympathetic nervous system for today. So let's talk about the sympathetic nervous system. ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जितनी भी विसरल ऑर्गन्स हैं उनके साथ अटैच्ड है, एंड दिस इज गोइंग टू फंक्शन इन फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनमें फंक्शन करता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स. Second part is ganglion, or you can say we will talk about the type of ganglions, and postganglionic fibers.
these three components are making the sympathetic nervous system. So we will talk about these three components of sympathetic nervous system. So it is easy to understand, just focus here. पहला जो पार्ट है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दिस पार्ट इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अभी मैंने बोला कि सिंपैथेटिक या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसके साथ अटैच्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर्स अराइज होते हैं वो नर्व फाइबर्स कौन से होंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे. सो दे से दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, डिफरेंट वर्टिब्रे आर प्रेजेंट. सो इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर, डिफरेंट रीजन से नर्व फाइबर्स अराइज होंगे, दीज नर्व फाइबर्स विल बी द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. सिंपली मीन्स गैंग्लियन से पहले जो फाइबर्स प्रेजेंट है, दीज आर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. अब when they are arising then they are going to form the ganglions. ganglions क्या है, cluster of neurons. और यहाँ पर जो ganglions present होते हैं, these ganglions are present in continuity, एक दूसरे के साथ attached होते हैं. so lots of ganglions are present and all the ganglions are attached with each other, so they are going to form a chain. these are the ganglions, cluster of nerve neurons जो प्रेजेंट हैं, और सारे ही गैंग्लियन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं. सो अ चेन इज गोइंग टू फॉर्म. इस चेन को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन. आई विल ड्रॉ अ कंप्लीट नीट डायग्राम टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड. जस्ट दिस इज अ रफ वर्क. सो दिस इज द सिंपैथेटिक चेन. और ये सिंपैथेटिक चेन कैसे बनी है, बहुत सारे गैंग्लियंस एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज्ड हैं and that is forming the sympathetic chain. So this is the ganglion part. ये क्या है, ये ganglion part है. So पहले spinal cord से pre ganglionic fibers arise होंगे, then they are going to innervate in this sympathetic chain जो बहुत सारे ganglion से मिलके बनी है. अब इन ganglion से जो nerve fiber arise होते हैं वो कैसे होंगे हमारे post ganglionic fibers. So from here the nerve fibers that are arising, they will be post ganglionic fibers. और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स किनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की विसरल ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. नाउ आई हैव शोन दिस सिंपैथेटिक चेन ऑन वन साइड ओनली, लेकिन ये सिंपैथेटिक चेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट है, because we talked about that pair of nerves are there. so exact same way यहाँ से इस डायरेक्शन में भी nerves arise होंगी, sympathetic chain बनेगी, और यहाँ से post ganglionic fibers arise होंगे. so they are going to arise from the both sides of the spinal cord. if we talk about the ganglions, the number of ganglions that are arising from the spinal cord, so number of ganglions are 21. One ganglion are going to form. और ये 21 गैंग्लियंस किनसे मिलके बने हैं, जितने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रीजन से अराइज होते हैं. वापस से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में वही उतने ही रीजन है. इफ़ आई टॉक अबाउट द सर्वाइकल रीजन, दैट इज गिविंग राइज टू 3 प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. वहाँ से 3 प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, दैट आर गोइंग टू फॉर्म द गैंग्लियन. देन इन आर thoracic रीजन it is going to be 12, in lumbar region 5 and 1 in sacral region. So these are the number of sympathetic fibers that are going to arise from the spinal cord. इतने नंबर अराइज होते हैं, that means 21 are going to arise from the spinal cord.
अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ some type of ganglions are known as collateral ganglions. कोलेटरल गैंग्लियंस हमें किन्हें बोलते हैं? दीज आर दोज गैंग्लियंस जो स्पर्मेटिक, जो हमारी सिंपैथेटिक चेन है, उस सिंपैथेटिक चेन से डायरेक्टली बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और बॉडी के किसी और पार्ट में जाके एग्रीगेट होते हैं. मीन्स सम ऑफ द नर्व फाइबर्स are not going to form the aggregation or ganglion in that sympathetic chain, but it is going to move out of the sympathetic chain और बाहर जाके they are going to form the ganglion. So उन ganglions को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल गैंग्लियंस बोलते हैं. एंड वी आर हैविंग 3 कोलेटरल गैंग्लियंस. 3 कोलेटरल गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं. सेलिक गैंग्लियन, वन इज celiac ganglion, superior mesenteric ganglion and inferior mesenteric ganglion. These are collateral ganglion. So we have discussed the components of sympathetic nervous system. हमने अलग अलग components को देखा है. Now I am drawing a diagram for you in which we will discuss about all the components in one single section to understand is more better. So this is showing our sympathetic nervous system. How we understand this sympathetic nervous system? I have drawn this spinal cord. स्पाइनल कोड अगर आपको रिमेंबर हो, सो वी आर हैविंग 8 सर्वाइकल वर्टिब्रे. ये 8 सर्वाइकल वर्टिब्रे वाला रीजन है. थोरेसिक, लंबर और सैक्रम एंड नीचे द कॉक्सियल टेल इज प्रेजेंट. ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज दिस पोर्शन इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, बिकॉज हम जानते हैं दैट मेडुला ऑब्लिंगेटा इज लीडिंग टू स्पाइनल कोड. सो दिस इज मेडुला ऑब्लिंगेटा. मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर पोन्स वेरोलाई प्रेजेंट है. पोन्स इज देयर एंड हियर आर midbrain is present. So these 3 parts they are going to form the brain stem. इसे हम brain stem बोलते हैं. Are midbrain, pons varoli and medulla oblongata, जो हमारे 4 brain को spinal cord के साथ connect करता है. Now this portion is giving rise to sympathetic nerve fibers. अब sympathetic nerve fibers को हमने 3 parts में divide किया है. That is arising from the spinal cord. जो nerve fibers spinal cord से arise हो रहे हैं, these are the preganglionic fibers. ये preganglionic fibers हैं. This is the chain of ganglions that is present, और इस chain of ganglions को हम क्या बोलते हैं? Sympathetic chain. Now this sympathetic chain is having many ganglions. यहाँ से बहुत सारी. These are postganglionic nerve fibers. Postganglionic nerve fibers यहाँ से arise होते हैं. These are postganglionic fibers which are arising from this sympathetic chain. Now we talked about collateral ganglions. कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सिंपैथेटिक चेन से बाहर मूव करते हैं और बॉडी के कुछ पार्ट्स में जाके क्लस्टर करते हैं. मींस गैंग्लियंस आर फॉर्म्ड आउटसाइड दिस सिंपैथेटिक चेन. इन गैंग्लियंस को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल गैंग्लियंस. वी आर हैविंग 3 कोलेटरल गैंग्लियंस. दिस इज आवर सेलियक गैंग्लियन. Celiac, this one is superior mesenteric ganglion and this one is inferior mesenteric ganglion, and combinedly these 3 are known as collateral ganglion. और ये post ganglionic fibers, these post ganglionic fibers are going to innervate the different organs of our body, that is including our eye, हमारी तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. हार्ट इज देयर, लंग्स, स्टमक, आर इंटेस्टाइन पार्ट,
then our reproductive parts. So these postganglionic parts, they are going to show branching. जितने ज़्यादा लंबे पार्ट डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करेंगे उतनी ज़्यादा इनमें ब्रांचिंग होगी, एंड दीज आर गोइंग टू इनर्वेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर body, means the internal visceral organs of our body. Now this is the structure. If we talk about the functioning of the sympathetic nervous system, तो sympathetic nervous system किसके साथ function करता है? It is going to function with adrenal medulla. अगर हम embryonic origin देखें तो spinal cord और adrenal medulla, they are having same embryonic origin. एक ही पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक nervous system. Now cells, they are, this adrenal medulla is having the part of sympathetic nervous system, same cells are present. This sympathetic nervous system, it is going to accelerate this adrenal medulla, and this adrenal medulla is going to release hormones. So 80% of the hormone that is released by this adrenal medulla is adrenaline, and we already know that this adrenaline is known as emergency hormone that is going to function in the emergency situations. So because these nerve fibers are responsible for the secretion of adrenaline from adrenal medulla, these are known as adrenergic fibers, because they are leading to the secretion of adrenaline. 20% of non-adrenaline is released and some amount of dopamine is released. So sympathetic nerve fiber is controlling the secretion from the adrenal medulla, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में एड्रेनल मेडुला एड्रेनलिन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है. सो दिस इज हाउ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज functioning. In next class we will see how parasympathetic nervous system is functioning, and after completing both two we will compare their functioning.